إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، تزکیہ نفس کا یہ درس جو سورہ یوسف کی تفسیر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 اس آیت کے تعلق سے آج انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ وقت رہا تو آیت نمبر 38 39 ان آیتوں کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام جیل میں بھی، قید خانے میں بھی اپنا فریضہ منصبی جو انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، تو اپنا یہ دعوتی فریضہ وہ جیل کے اندر بھی انجام دیتے رہے ہیں، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے کہ مومن چاہے جہاں کے کہیں بھی رہے، جس کام میں بھی رہے، اپنا دعوتی فریضہ وہ نہیں بھولتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہو تو وہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے پہلے آیت نمبر 36 اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور تھوڑا سا سلسلے کو جوڑنے کے لیے آپ کے سامنے آیت نمبر 36 کے بارے میں بات رکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان بھی داخل ہوئے قید خانے میں، یعنی انہیں بھی بادشاہ وقت نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے والا شخص تھا، جس کی نوکری یہی تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا روٹی بنانے والا کک جو ہے، نان بائی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو روٹی پکانے والا شخص تھا، اور دونوں کی کسی غلطی کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ بادشاہت کا یہ اپنا انداز ہوتا ہے کہ کسی شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور بادشاہ اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو بادشاہ کی ناراضگی جیل کی کال کوٹھری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر بادشاہ کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو پھر اسے کم سے کم سزا تو یہی ہوتی ہے کہ جیل میں ڈال دیا جاتا تھا،
ورنہ تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہ سزا بھی بہت معمولی اس زمانے میں مانی جاتی تھی۔ اور فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا یہ معاملہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ظالمانہ اور جابرانہ حکومت میں کوئی بھی شخص چاہے غلطی نہ ہو لیکن بادشاہ کی نگاہ میں اگر غلطی ہے تو اس کی بھی سزا اسے بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ دو آدمی بھی جیل میں ڈالے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا جیل میں کہ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب جو ہے دیکھنے کے بعد خواب کی تعبیر وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اس چیز کے لیے کافی مشہور ہو گئے تھے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بیان کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ تعبیر بیان کرتے ہیں بالکل حقیقت میں چیز بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر کا یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خصوصی طور پر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ خواب کی سچی اور صحیح تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس تعبیر کے لیے، خواب کی تعبیر کے لیے، یہ دونوں نوجوان جنہوں نے خواب دیکھا اپنا خواب لے کر کے پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یوسف علیہ السلام پورے جو اس قید خانے میں، اس جیل میں جتنے بھی جو ہے قیدی تھے، سارے قیدیوں میں یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق، اپنے علم، اپنی دعوت کو لے کر کے کافی مشہور تھے۔ اور یہی ہوتا ہے، نیک آدمی کہیں بھی ہو تو وہ نیک ہی رہتا ہے، اور اس کی اپنی شہرت، اس کے تقوی اور اس کی جو ہے للہیت اور اس کی خدا ترسی کو لے کر کے، اللہ سے خوف اور تقوی کو لے کر کے اس کی شہرت لوگوں میں ہو جاتی ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی جینٹل مین کے طور پر پورے جو ہے قید خانے میں، پوری جیل میں مشہور ہو چکے تھے، لوگ اسے جان چکے تھے، اس لیے کوئی بھی معاملہ ہوتا تو لوگ انہی کے پاس لے کر کے آتے تھے، اور یہ خوابوں کا معاملہ ہو تو لوگ انہی سے خوابوں کی تعبیر بھی چاہتے تھے۔ تو یہاں جو طریقہ ہے بیان کرنے کا اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ بیچ میں کافی چیزیں حذف کر دی گئی ہیں، اور یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن قصے کو پورے تسلسل کے ساتھ ایک ایک چیز بیان نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں کسی بھی قصے اور کہانی کو، جو کہ سچی قصے اور کہانیاں ہیں انبیاء کرام کی، جو قصے ہیں انبیاء کرام کے، ان قصوں اور کہانیوں کا وہی حصہ ذکر کیا ہے قرآن نے جو حصہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے ضروری ہے، اتنے ہی حصے پر اکتفا کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ ان کے ساتھ دو جو ہے جوان قید خانے میں داخل ہوئے، جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، لمبی مدت گزری، وہ بھی جیل میں رہے، یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے، ان کا آپس میں تعارف ہوا، آپس میں جان پہچان ہوئی، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان گئے۔ پھر ہوا یہ کہ جیل میں ان دونوں جوانوں نے خواب دیکھا، تو خواب کی تعبیر کے لیے اب یوسف علیہ السلام کے پاس جو آئے ہیں تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جیل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے خواب بھی دیکھ لیا اور یہ بات جو ہے کہہ دی یوسف علیہ السلام سے، ایسا نہیں ہے یہ۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جب یہ سینٹنس ختم ہوتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جہاں یہ سینٹنس ختم ہوتا ہے وہاں ایک علامت ہوتی ہے رکنے کی کہ آپ وہاں رک جائیے۔ اب یہاں تک یہ جو ہے سینٹنس مکمل ہو چکا ہے، یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب بیچ میں کافی چیزیں ہوئیں لیکن اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ایک خواب نظر آیا
तो ख्वाब का जिक्र जो है, इन दो कैदियों को जो ख्वाब नजर आया उस ख्वाब का जिक्र है। तो ये है तरीका। तो क्या आप देखिए उसके बारे में कहा, क़ाल अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ने कहा, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं देख रहा हूं अपने आप को कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं अपने आप को कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। इन्नी अरानी आसिरु खमरा, ये अरबी का सेंटेंस है, इसमें बड़ी बलागत है। और बलागत की दो अहम चीजें हैं जो इसमें अरबी बलागत की जिक्र की गई है। तो मैं चाहूंगा कि अपने उन भाइयों के लिए जिनका बलागत से थोड़ा रिश्ता है, अरबी बलागत से, उनको याद दिला दूं बलागत के ये दो अहम पॉइंट जो इस जो है आयत के अंदर मौजूद है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहा उनमें से एक ने कि इन्नी अरानी आसिरु खमरा, कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है। ये उर्दू में माना आप देखेंगे किसी भी जो है तर्जमे की किताब में, तर्जमे की जो है जो कुरान का तर्जमा है, कुरान के तर्जमे में, ट्रांसलेशन में आप देखेंगे ऐसे ही माना करते हैं। क्या माना करते हैं कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निचोड़ते देखा है। हालांकि ये यही अल्फाज नहीं है, ये सोचने की बात है। इसीलिए कहते हैं कि तर्जमे से कभी भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आ सकती। देखा है ये फेल मादी है। अरबी जबान में जो फेल मादी होता है ना, उसका तर्जमा उर्दू में क्या आता है, देखा है। जबकि यहाँ जो लफ्ज है अरबी का वो क्या है, इन्नी अरानी, अरानी, अरा ये फेल मुबारे है। इसका माना करेंगे हम आप उर्दू में तो क्या होगा कि इन्नी अरानी, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। इन्नी अरानी आसिरु खमरा, कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। आसिरु खमरा, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। तो दो मैंने आपसे कहा था कि बलागत के अहम पॉइंट है इसमें, मैं उसको जो है वाज़ेह करना चाहूंगा आपके सामने। आप सबको समझ में आएगी बात, लेकिन जो थोड़ी बहुत अरबी बलागत पढ़े हैं उनको ज्यादा समझ में आएगी बात। तो पहली बात क्या है कि कहा इन्नी अरानी, ये फेल मुदारे है। इसका तर्जुमा क्या करेंगे, मैं देख रहा हूं। और इन्नी रअयतु, इसका माना होता है मैंने देखा। यहां असल में होना यही चाहिए था, इन्नी रअयतु, क्योंकि ये ख्वाब इन्होंने पहले देखा है। ये पास्ट में चीज हो चुकी है, एक गुजरी हुई चीज है। तो गुजरी हुई चीज को बयान करने के लिए अरबी जबान में पास्ट टेंस, जिसे हम अरबी में फेले मादी कहते हैं, फेले मादी का ही यूज किया जाता है, उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन्नी रायतु नहीं कहा है जो फेले मादी है, कि मैंने देखा। अल्लाह ताला ने तो वो कहा नहीं, तर्जमे में आपने वो कह दिया। तो फिर तो बलागत का जो पॉइंट था वो तो वैसे ही रह गया। असल यहीं पर तो अरबी की बलागत थी यहाँ पर। और ये बलागत उर्दू के तर्जमे में या किसी भी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं हो सकती है। बलागत, बलागत तर्जमों में नहीं जाहिर होती है, उसे बयान करना पड़ता है, उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसकी शरह करनी पड़ती है, तब जाकर के वो चीज क्लियर होगी, वाजे होगी। उसके बगैर तर्जमे से ये चीजें नहीं आती। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये ख्वाब इन्होंने पहले देखा, और ख्वाब देखने के बाद ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताबीर पूछने के लिए आए। तो लाजमी तौर पर जब ख्वाब पहले देखा है तो उसको बयान करने के लिए फेले माजी यहाँ पर यूज करना चाहिए था, पास्ट टेंस यूज करना चाहिए था। क्या यूज करना चाहिए था, इन्नी रअयतु।
यहाँ कहा गया इन्नी अरानी, मैं देख रहा हूं, ये फेले मुबारे है जो प्रेजेंट टेंस और जो है फ्यूचर टेंस के लिए आता है। इन्नी अरानी, अरा जो है ये फेले मुबारे है अरबी में। इन्नी राई तो नहीं कहा कि मैंने देखा, जबकि होना यही चाहिए था कि मैंने देखा, क्योंकि ये चीज हो चुकी है। लेकिन अल्लाह ताला का फरमान क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को बयान करते हुए कि इन्नी अरानी, मैं देख रहा हूं अपने आप को, मैं खुद को देख रहा हूं। ये क्यों फेले मादी की जगह फेले मुजारे को इस्तेमाल किया? ये अरबी बलागत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ये, जिसे इल्मुल मानी में बलागत के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बलागा ये इल्मुल मानी कहलाता है, वो इल्मुल मानी का एक हिस्सा है। इसीलिए मैंने ये अल्फाज, अब इल्मुल मानी वगैरह जो पढ़े होंगे बलागा वो समझेंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो इसमें पॉइंट है, वो सब समझेंगे इंशाअल्लाह, आप सब लोग समझेंगे। तो फेले माजी की जगह पर फेले मुजारे को कभी कभी इस्तेमाल अरबी में किया जाता है, और इसमें बलागत होती है, इसमें बलागत होती है, और इसमें इस बयान में बड़ा फायदा होता है। और उसी फायदे के पेश नजर फेले माजी की जगह फेले मुबारे को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पर, वैसे कुरान में बहुत सी जगहों पर यह बात है। आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को सुना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी, जो अब बकरीद के मौके पर बार बार सुनते रहते हैं, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह ताला ने जब कुरान में जिक्र किया है, तो उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब तो उन्होंने रात में देखा, और जब अपने बेटे से ख्वाब का जिक्र करते हैं तो ख्वाब देख चुके हैं, वो पास्ट हो चुका है, तो उसको पास्ट टेंस में ही बयान करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे भी प्रेजेंट टेंस, यानी जो फोले फेले मुबारक कहलाता है, उसमें बयान किया है। उसमें भी, वहां पर भी यही है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। क्या सेंटेंस है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि मैं देख रहा हूं ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। जबकि ये चूंकि देख चुके हैं ख्वाब में, तो होना चाहिए था अरबिक का ये सेंटेंस, इन्नी रअयतु फिल मनामी, कि मैंने ख्वाब में देखा है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, मैं ख्वाब में देख रहा हूं। इन्नी अरा, जिसका माना है कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में देख रहा हूं। तो फेले मादी की जगह पर फेले मुजारे बयान करने का फायदा क्या होता है अरबी बलागत के लिहाज से? इसके अंदर 3 अहम चीजें हैं जो नोट करने की है। पहली बात यह है कि उसके यकीनी होने को बताने के लिए, यकीनी होने को बताने के लिए, यानी जैसे मैं अपनी आंख के सामने कोई चीज देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं तो जिससे मैं बता रहा हूं, जाहिर सी बात है कि वो मेरे पास है, तो वो भी देख रहा है, और वो फौरन देख करके पता भी लगा सकता है। तो जो यकीन उसे हासिल होगा, मैं अगर पास्ट टेंस से उसको बयान करूं, तो वो मुझे सच्चा समझता है, तो मेरी सच्चाई पर यकीन जरूर करेगा, उसे यकीन हासिल तो होगा, लेकिन यकीन का वो दर्जा हासिल नहीं होता है जो आंखों देखी चीज को जो है देखने के बाद जो यकीन का दर्जा होता है, यकीन का जो लेवल होता है, उस लेवल तक वो यकीन नहीं पहुंचता है जो कितने ही सच्चे आदमी ने पहले गुजरी हुई कोई चीज बयान की। तो यकीन का लेवल इसमें और बढ़ता है। में एक तो फायदा उसका ये होता है। दूसरा जो है फायदा ये है कि बयान करने में, यानी ये ताकीद होती है, इसके अंदर ताकीद का फायदा होता है कि मैं जो ये ख्वाब बयान कर रहा हूं,
इस बयान करने में कहीं 1 इंच भी इधर उधर का फर्क नहीं है। जैसे देखा है बिल्कुल उसी तरह बयान कर रहा हूं। यूं समझो कि ये ख्वाब मेरे सामने अभी भी है, स्क्रीन पर वो चीज चल रही है, मेरे जहन के स्क्रीन पर ये ख्वाब चल रहा है और मैं अपनी आंखों से ये ख्वाब देख रहा हूं और उसी की जो है रनिंग कमेंट्री तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। ये दूसरा फायदा होता है। याद रखिएगा, ये चीज फेले मुजारे से आती है, फेले मादी से नहीं आती। तो अल्लाह तआला ने उस चीज को फेले मुजारे से बयान किया, गोया कि उस ख्वाब की मैं रनिंग कमेंट्री तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं, बिल्कुल जैसे है वैसे ही बयान कर। तो इसमें बड़ी ताकीद हो जाती है और इसी ताकीद से यकीन का पहलू और बढ़ जाता है। एक तीसरी चीज ये है, तीसरा फायदा बलागत के लिहाज से ये होता है कि जब गुजरी हुई चीज को सामने कोई चीज मौजूद है उसकी तरह से पेश किया गया, तो गोया कि आपने गुजरी हुई चीज को सामने की चीज जो मौजूद है उससे तशबीह दे करके उसे बयान किया है। और इसमें भी वही फायदा होता है, यकीन का वो फायदा होता है कि अपनी आंखों से देख करके, अभी सामने देख करके मैं उसे गोया कि बयान कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें मेरे भाइयों यकीन के उस लेवल को ऊंचा करती है जो बयान करने वाला अपने बयान में यकीन का जो लेवल लाना चाहता है, जिस लेवल तक पहुंचना चाहता है, वो लेवल सामने वाले के सामने वाज़ेह होता है जब फेले मादी के बजाय फेले मुदारे से उसका बयान किया जाता है। तो कुरान में अल्लाह तआला ने ये कई जगहों पर चीज पेश की है। यूं समझो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे ख्वाब की जो मैं ख्वाब पेश कर रहा हूं उसमें एक हर्फ भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल वही बात पेश कर रहा हूं जो मैंने देखा है। क्योंकि ख्वाब की ताबीर करने वाला शख्स चाहे कितना ही माहिर क्यों ना हो, ख्वाब की ताबीर करने में एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा इल्म दिया गया है, सब कुछ है। लेकिन अगर ख्वाब बयान करने वाला झूठा ख्वाब बयान कर रहा हो तो वो क्या कर सकता है, या उसमें कुछ कमी बेशी करके पेश करेगा अगर हो, तो ख्वाब की ताबीर करने वाला तो परेशान हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो ख्वाब की ताबीर जो वो पेश करेगा उसमें भी गलती हो सकती है। तो पहले तो ख्वाब बिल्कुल सही पेश करना होता है। तो उसके लिए क्या कहा है देखिए, इन्नी अरानी, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन्नी अरानी, मैं अपने आप को देख रहा हूं, ये माना है इसका। हालांकि होना चाहिए था कि मैंने देखा है, लेकिन क्यों ये बयान किया वो पॉइंट मैंने आपके सामने वाजे कर दिया कि इससे यकीन का दर्जा और ऊंचा हो जाता है, यानी जो है सुनने वालों को और यकीन हासिल हो जाता है कि जो ख्वाब पेश किया जा रहा है ये ख्वाब बिल्कुल जो है वही ख्वाब है जो देखा है इस शख्स ने, इसमें कुछ भी कमी बेशी नहीं किया है। उसके बाद इससे एक चीज और भी समझ में आती है, वो क्या है कि अक्सर ख्वाब बयान करने वाले कमी बेशी कर देते हैं। याद रखिएगा, ये है हकीकत है। ये अक्सर ख्वाब देखने वाले जब अपने ख्वाब को जाकर के बयान करते हैं दूसरों के सामने तो उसमें कमी बेशी कर देते हैं। इसीलिए हदीस में इसकी बड़ी जो है सख्त वईद आई है कि किसी शख्स ने अगर जबान से ये कहा, कोई चीज जो है कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा, हालांकि उसने देखा नहीं है, या तो सिरे से झूठ ही बोल रहा है या जो देखा था उसमें कमी बेशी करके पेश कर रहा है, बिल्कुल सही पेश नहीं कर रहा है, तो क़यामत के दिन उसे हुक्म दिया गया जाएगा
کہ وہ جو ہے जौ में, या एक लफ्ज आया हुआ है अरबी में, वो जिसमें जो है गांठ देना, गिरह लगाना ये मुमकिन नहीं है, तो कहा जाएगा कि उसमें गिरह लगाओ। यानी एक नामुमकिन काम जो कि वो कर नहीं सकता, ऐसा काम करने की उसे जो है सजा दी जाएगी। तो ये खैर दूसरी बात है, मैं अभी फिलहाल इस दर्स में उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैंने आपको ये पॉइंट समझाया इन्नी अरानी। दूसरा क्या है बलागत का पॉइंट, आसिरो खमरा। आसिरो का मतलब होता है मैं निचोड़ रहा हूं। हालांकि इसने ख्वाब में देखा है वो, लेकिन बयान जो है क्या है फेले मुबारक के साथ कि मैं निचोड़ रहा हूं। आसरा अरबी में किसे कहते हैं कि आप अंगूर है या कोई भी फल जिसके अंदर अंदर पानी होता है, जो उसको आप जो है दबाएंगे तो वो पानी निकलेगा, जैसे गन्ने वगैरह का आप जो है करते हैं, वैसे ही अंगूर का भी है, दबाएंगे तो उसमें से वो पानी, अंगूर का पानी निकलेगा। तो अरबी जबान में इसको आसरा कहता है, कहा जाता है। जब आप जोर से दबाए, अब तो लोग मशीन से दबाते हैं, लेमन वगैरह आप जो है दबाते हैं तो वो लेमन का पानी जो है निकलता है, अरबी में इसको आसरा कहा जाता है। तो इन्नी आसिर खमरा, मैं निचोड़ रहा हूं, उर्दू में इसको निचोड़ना कहते हैं, जोर से दबाएंगे तो वो निकलता जाएगा पानी उसमें से। तो मैं निचोड़ रहा हूं, किस चीज को निचोड़ रहा हूं? खमरन। खमर अरबी में कहते हैं शराब को, जिसे आप उर्दू में शराब कहते हैं, जिसे आप वाइन या अल्कोहल वगैरह के लफ्ज से याद कर लेते हैं आज की जबान में। तो इसी को अरबी जबान में खमरुन कहा जाता है। खमरुन का ये लफ्ज बदल देना, दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये उतना बेहतर नहीं है मेरे लिहाज से। खास तरीके से उर्दू वालों ने जो इसका तर्जमा शराब से किया है, ये जरा मैं इसको उतना अच्छा नहीं समझता हूँ। इससे तो जबानों की अलग अलग बात होती है, क्योंकि शराब का माना असल जो होता है ना, वो क्या है, कोई भी पीने की चीज, किसी भी पीने की चीज को अरबी में शराब कहा जाता है। तो उर्दू में चूंकि अरबी जबान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी उसका जो है बहुत ज्यादा असर है, तो अब वो शराब का लफ्ज जो है शरीबा अरबी में पीने को कहते हैं, तो शराब के अंदर पीने का माना पाया जाता है। तो उर्दू वालों ने उसे सिर्फ पीने की बात की हद तक बात रखा, यानी उसका नाम क्या रखा, शराब, जिसका मतलब होता है कि पीने की एक चीज। भाई जो है ड्रिंक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, भाई जो है ड्रिंक तो कुछ भी हो सकती है, अच्छी चीज भी हो सकती है। दूध भी एक शराब है, यानी पीने की एक चीज है। इतनी अच्छी चीज है, कुदरत की तरफ से इतना बड़ा अतिया और इतनी बड़ी नेमत है, तो इसके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करना जरा जो है मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों की ये ज्यादती है। या उर्दू वालों में जो बड़े बड़े माहिर लोग थे ना, जो अदीब लोग कहलाते हैं, शायर और अदीब, अक्सर ये पियक्कड़ होते थे। पियक्कड़ का लफ्ज भी यहीं से आया है, पीने वाले। वो सारे अल्फाज ऐसे ही इस्तेमाल किए हैं उसके लिए। भाई जो आप पानी पीते हैं तो भी आप पीने वाले हैं। तो ये जो है लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, तो अक्सर ये लोग तो शराब पीते थे ये, तो इन्होंने शराब के इस मसले को बड़ा हल्का पेश किया है अपनी जबान में। तो हम उसी जो है लफ्ज का को इस्तेमाल भी कर लेते हैं उर्दू में तर्जमा करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी अरबी के इस लफ्ज के साथ हमारी ज्यादती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अरबी का ये लफ्ज बाकी रखना चाहिए। क्योंकि अरबी के इस लफ्ज में, खमरुन के इस लफ्ज में, इस वर्ड में उसकी मजम्मत का पहलू मौजूद है, उसकी हुर्मत क्यों है उसका पहलू मौजूद है। वो क्या है, खमरुन के असल माने अरबी में होते हैं ढांपने के, कवर कर देना, ढांप देना कोई भी चीज। खमरा के माने होते हैं ढांप देना, कवर कर देना। इसी से खेमार अरबी में कहा जाता है। खेमार औरतों का जो दुपट्टा होता है, जिसे ओढ़नी भी आप कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं, उसको अरबी में खेमार कहा जाता है, जिससे औरत अपना सर और अपने सीने को, सीने के उभार को छुपा लेती है, वो पर्दा कर लेती है, तो उसे अरबी में खेमार कहा जाता है।
तो खमर के असल माने अरबी में क्या होते हैं? छुपाने के, कवर करने के होते हैं। तो अरबों ने इसका नाम खमर क्यों रखा है? कहते हैं लिअन्नहु खामरल अक्ल, क्योंकि ये अक्ल पर पर्दा डाल देती है ना, अक्ल को ये कवर कर देती है, इंसान को अपना होश नहीं रहता। इससे उसकी अक्ल, अक्ल कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। दुनिया में है कोई शख्स जो ये चाहेगा कि उसकी ये नेमत, अक्ल की ये नेमत छिन जाए? जिसकी अक्ल की नेमत छिन गई वो मजनू, दीवाना, पागल है, बकवास करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, और बच्चे उसको पत्थर मारते हैं उसकी इस जो है हरकत की वजह से। ये जो है मजनू और दीवाना, ये उसका तस्वुर है, क्योंकि उसके अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं। तो अक्ल पर पर्दे पड़ जाना ये इंसान के बेअक्ल होने की बात होती है, दीवाना होने की बात होती है, बेवकूफ होने की बात होती है। तो ये चीजें जो है खमर के अंदर ये माना था, खमरुन अरबी में जो था उसके अंदर ये माना था। तो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि उसकी अक्ल पे पर्दे पड़ जाए, दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि वो दीवाना, मजनू, पागल बन जाए, और शराब यही तो करती है। इसीलिए तो उसको खम्र कहा गया है, और इसीलिए इस्लाम ने उसको हराम करार दिया, क्योंकि इंसान की अक्ल की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की, जिस्म की हिफाजत का हुक्म दिया है, और ये ज़रूरी है, हिफाजत ये ज़रूरी है, उसमें से अक्ल की हिफाजत भी है। तो इंसान को अपने अक्ल की हिफाजत करनी है, और ये खम्र अक्ल की हिफाजत करने में उसके ये खिलाफ, उसके खिलाफ है ये, उसकी अक्ल की हिफाजत इससे मुतासिर हो जा रही है। जबान से क्या कर रहा है, गाली गलौज बकता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। बाद में जब होश आता है और उससे ये कहा जाए कि भाई तुमने नशे की हालत में ये कहा है, तो खुद वो अपनी बात पे शर्मिंदा हो। तो ऐसी चीज को हाथ क्यों लगाया आपने? तो ये खम्र का लफ्ज था, हमने उसे बदला है। अब फिर से आइए इस सेंटेंस पे कि इन्नी अरानी आसिर खमरा, कि मैं खम्र निचोड़ रहा हूं, शराब निचोड़ रहा हूं, खम्र निचोड़ रहा हूं। क्या कोई शख्स खम्र निचोड़ता है? शराब निचोड़ने की चीज है? बताइएगा, क्या शराब निचोड़ने की चीज है? यह है दूसरा पॉइंट बलागत का जो यहां सोचने का। निचोड़ा शराब को नहीं जाता है, बल्कि जिससे शराब बनाई जाती है उससे निचोड़ा जाता है। जैसे अंगूर से शराब बनाई जाती है, ग्रेप्स जिसे आप कहते हैं, तो अंगूर को रखा गया, वो सड़ जाता है। असल में ये शराब जैसे बनाई जाती है, ये सड़ी हुई चीजें होती है, जब खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो वही समझिए ये शराब होती है। इसीलिए जो शराब पीते हैं उनके मुंह से वो बदबू आती रहती है शराब की, जो है ये असल में सड़ी हुई चीज है। तो अंगूर का आप रस निकालें, बिल्कुल ताजा अंगूर का रस निकालें, तो वो असीरुल एनब कहलाता है अरबी जबान में। यानी जिसे आप कहेंगे कि ग्रेप्स जूस, आप इंग्लिश में कहेंगे कि अंगूर का ये जूस है, ये रस है, ये उसे आप पीजिए, कोई मसला नहीं, जायज है। लेकिन यही जब सड़ जाता है और उसके अंदर नशा पैदा हो जाता है, उसे निचोड़ा जाता है, उसे शराब बनाई जाती है, तो ये हराम करार दिया गया है, क्योंकि ये सड़ी हुई चीज जो अक्ल पे पर्दा डाल देती है, जिससे इंसान अपने होश और हवास को खो बैठता है। तो ये है असल। तो निचोड़ा क्या जाता है, मैं ये कह रहा था आपको कि निचोड़ा क्या जाता है। तो निचोड़ना ये अंगूर को, ज्यादातर हमारे यहाँ इस मुल्क में तो अंगूर की शराब ही ज्यादा मशहूर है। अरबों के यहाँ अंगूर की शराब भी थी, उनके यहाँ एनब भी होता था, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके यहाँ खजूर की शराब बनती थी। खजूर को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, खजूर छोड़िए, ये मौज जो आपके यहाँ होता है, केला,
मौज जो है। और इसी तरीके से आपका ये जो चावल वगैरह अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो चावल भी खराब होकर के उसके अंदर भी नशा पैदा होगा। तो ये सारी चीजें, इन सब की जो है शराब, जौ वगैरह, जौ होता है, जौ जिसे आप बार्ली कहते हैं, उन सब की भी जो है शराब जो है बनाई जा सकती है। उस सबको जो आप सड़ा दें अगर, तो सड़ने के बाद उसके अंदर नशा पैदा होने लगता है और वही जो है शराब उससे बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस मुल्क में उर्दू वालों के यहाँ शराब का तस्वुर जो पाया जाता है ना, वो सिर्फ अंगूर का पाया जाता है। इसीलिए ये लोग शराब को अंगूर की बेटी कहते हैं। आपने ये लफ्ज सुना हो शायद। उर्दू से अगर ज्यादा वाकिफियत हो और उर्दू की किताबों में जो बातें लिखी जाती हैं, जो अशार लिखे जाते हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो इसको ये लोग अंगूर की बेटी कहते हैं। अंगूर की बेटी, शराब को क्या कहते हैं? अंगूर की बेटी। आपको एक थोड़ा सा जो है एक मजाहिया मसला है ये, और किसी शख्स ने जो है तंजो मिजाह के तौर पर इसको बयान किया, तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ इसको शेयर करूं आज के इस दर्स में। तो बड़े मनचले किस्म के लोग होते हैं। तो एक मनचले शख्स ने ये कहा, अंगूर रखा अपने सामने और एक मौलवी साहब को बुला करके कहा, ये अंगूर खाओ। अंगूर पेश किया, एनब जो है जिसे अरबी में कहते हैं, जो है आप ग्रेप्स कहते हैं, वो पेश किया, वो खाने लगा। उसके बाद उसके बगल में शराब भी रखा था, उसे शराब पेश किया तो कहा कि नहीं नहीं, ये हराम है, जायज नहीं है, मैं नहीं पीता इसे। तो ये मनचला शख्स कहता है कि ये माँ, अंगूर क्या है? ये माँ है, माँ, माँ, ये मदर जो आप कहते हैं, ये माँ है, इसको तो आप खा गए, जायज है ये। और उसी की ये बेटी है शराब, तो आप कहते हो जायज नहीं है। ये क्या मतलब हुआ कि माँ तो जायज है और बेटी जायज नहीं है? अरे जब माँ जायज है तो बेटी क्यों जायज नहीं है? ये जो है उसने पेश कर दिया आकर के जो, और इस तरीके से मनचला आदमी जो है अपने तौर पर वो साबित करना चाह रहा है कि आप अंगूर जब जायज है तो ये शराब क्यों जायज नहीं है, ये भी तो अंगूर की बेटी है। तो अब वो शख्स भी थोड़ा था, बहरहाल अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर जवाब देने का दिमाग दिया था उसको भी, तो उसने भी कहा, उसकी बीवी को लाया और उसकी बेटी को लाया। ये हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको, कि उसकी बीवी को लाया और जो है बेटी को लाया। कहा जो तुम अपनी बीवी के साथ करते हो वही बेटी के साथ भी करो। तो वो शख्स, अरे भाई ये मेरी बेटी है, मैं जो है कैसे, वो मेरे साथ, मेरे लिए जायज नहीं। कहा कि जब तुम्हारे लिए माँ जायज है उसकी बेटी की, तो फिर बेटी क्यों जायज नहीं है? ये बस कहने की बात है, ये वो उस मौके पर जवाब देने की बात है, जवाब दे दिया उसने, और वो बात जो है उसके समझ में भी आ गई। वरना इसका कोई माँ बेटी का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ये तो जो है उस मनचले शख्स ने कहा। और ये उर्दू में ये चीज बहुत मशहूर है, शराब की को जो है अंगूर की बेटी कहा जाता है। वरना शराब तो दूसरी चीजों से भी बनाई जाती है, सिर्फ अंगूर से ही नहीं बनाई जाती। तो ये शख्स ने क्या कर देखा ख्वाब में कि इन्नी अरानी आसिरु खमरा, कि मैं निचोड़ रहा हूं शराब को। बात असल यहाँ, मैं शराब को निचोड़ रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि शराब को नहीं निचोड़ा जाता है, बल्कि अंगूर को निचोड़ा जाता है। शराब बनाने के लिए अंगूर को निचोड़ा जाता है। ये तो निचोड़ने के बाद शराब बनती है। चाहे खजूर हो, कोई भी चीज हो, उसे निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद फिर वो शराब बनती है। शराब को निचोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा गया इन्नी आसिरो एनाबन, इन्नी आसिरो एनाबन, मैं अंगूर को निचोड़ रहा हूं। जबकि निचोड़ा जाता है अंगूर को, खजूर को, जो भी जिस चीज की भी शराब बनाई जाए उसे निचोड़ा जाता है। वो नहीं कहा गया, बल्कि डायरेक्ट खम्र कहा गया। इसे अरबी बलागत में कहा जाता है बेतबार मा यकून, यानी जो
निचोड़ने के बाद जो चीज होने वाली है वो उसको पहले ही बयान कर दिया गया कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूं, हालांकि वो अंगूर निचोड़ रहा है जो कि बाद में उससे शराब बनाई जाए। तो चूंकि बाद में शराब बनने वाली है उससे और उस मकसद से निचोड़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट उसके लिए शराब का लफ्ज ही यानी खम्र का लफ्ज ही इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये किसी भी जबान में बलागत की ये चीज रहती है। हम उर्दू में भी इस तरह की बातें कहते हैं। हम उर्दू में ये बहुत मशहूर है हम लोगों के यहाँ, आप भी उसे इस्तेमाल करते हैं, आटा पिसवाना। कहते हैं आटा पिसवाया, वो पीसने के बाद ना आटा होता है, आटा नहीं पीसा जाता। कहते हैं आटा पीसने की मशीन। आटा को नहीं पीसा जाता है, असल में गेहूं को, चावल को, या जो भी चीज आप पीसने के लिए ले गए उसको पीसा जाता है। लेकिन ये लैंग्वेज में बयान करने का ये अंदाज होता है, इसको बलागत कहा जाता है। तो ये अरबी बलागत का एक अंदाज है। कुरान चूंकि अरबी बलागत का सबसे ऊंचा मेयार, सबसे ऊंचा लेवल है, सबसे हाई लेवल है, तो यहाँ भी अरबी बलागत की चीजें आपको इस तरह से नजर आएंगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उस शख्स ने कहा, इन्नी अरानी आसिर खमरा, कि मैं देख रहा हूं अपने आप को कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। उसके ये पहले शख्स का ख्वाब था। वकाल अल आखर, और दूसरे ने कहा, दोनों में से एक ने तो कहा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा इन्नी अरानी अहमिलु फौqa रअसी खुब्ज़न तअकुलु तयरु मिन्हु, कि मैं देख रहा हूं कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ। हमला यहमिल, जिसे आप कैरी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये उठाना जो है, मैं सर पर क्या उठाए हुए हूँ? रोटी उठाए हुए हूँ। सर पर रोटी रखा है, ताकुलु तैरो मिन्हु, और परिंदे उससे खा रहे हैं। परिंदे ये रोटी खा रहे हैं। मैंने रोटी रखी है तो रोटी परिंदे खा रहे हैं, आकर के परिंदे नोच रहे हैं, खा रहे हैं उसी सर पर से। ये कहा गया तअकुलु तैरो मिन्हु। दोनों का ये ख्वाब हो गया, और उसके बाद ख्वाब बयान करने के बाद कह रहे हैं कि नब्बिना बितावीले, नब्बिना बितावीले, आप हमें इसकी ताबीर बता दीजिए। नब्बिना बितावीले, आप हमें खबर दीजिए इसकी ताबीर के बारे में, इसकी तावील के बारे में। अरबी ज़बान में ख्वाब की ताबीर को तावील का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको, इसकी आप ताबीर बयान कर दीजिए, यानी हकीकत में इसका क्या मतलब है, आप उस हकीकत को हमारे सामने बयान कर दीजिए। तावील का एक माना अरबी में हकीकत को बयान करना भी होता है, इसीलिए कुरान की तफसीर को भी तावील कहा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर की किताबों को तावीलुल कुरान का नाम भी दिया है, इसी माना। अब ये दोनों का ख्वाब हो गया, दोनों ने अपने ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त की और कहा, इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, यकीनन हम आपको, इन्ना नराक, यकीनन हम आपको देख रहे हैं, मिनल मुहसिनीन, अच्छे लोगों में से, आप हमें अच्छे भले आदमी नजर आ रहे हैं। इसी को हमने शुरू में बता दिया था आपको कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जेल में भी अपनी अच्छाई और अपनी खूबियों को लेकर के, अपने अखलाक को लेकर के काफी मशहूर हो गए थे। जेल का हर आदमी इनकी खूबियों का मुअतरिफ था, और ये सबसे पहली दावत होती है। एक मुसलमान की पहली दावत जबान से नहीं होती है, उसकी पहली खामोश दावत उसके अमल से होती है, उसके अपने अखलाक से होती है, उसके अपने मुआमलात से होती है।
लोग पहले अखलाक और मामलात देखते हैं, जबान से निकलने वाली तकरीर और जबान से निकलने वाले अल्फाज सुन करके मुतासिर नहीं होते। लोग क्या देखते हैं? अखलाक देखते हैं, मामलात देखते हैं। जब अखलाक की खुशबू बिखरती है तो इस्लाम की दावत खुद ब खुद फैलती है मेरे भाई। ये पॉइंट है नोट करने का। इस आयत को जब पढ़ते हो तो ये पॉइंट नोट करो कि ये लोग इनके पास क्यों आए। क्योंकि ये लोगों में अपनी अच्छाई को लेकर के मशहूर हुए। काश आज मुसलमान भी पूरी दुनिया में अपनी अच्छाई को लेकर के ऐसे मशहूर हो जाते कि नॉन मुस्लिम भी अपने मामलात लेकर के इनके पास आते कि ये लोग मसले को हल करें, क्योंकि ये अच्छे आदमी है, भले आदमी है। काश कि आज हमने अपने इस्लामी अखलाक की खुशबू जो है फिजा में बिखेर दी होती और लोगों में फैला दी होती, लोगों को पता चलता कि किस तरीके से ये लोग इस्लाम के मानने वाले अमन के पैगाम्बर हैं और अमन व शांति को फैलाने वाले हैं। हमने अपने अखलाक से, अपने मामलात से काश इस चीज को वाज़ेह किया होता दुनिया वालों के सामने, तो आज सूरत हाल ये ना होती कि हमें अपने फैसलों के लिए, अपने मामलात के लिए दूसरों के पास जाना होता है। उस वक्त होता ये कि लोग हमारे पास आते, अच्छे लोग के, अच्छे आदमियों के पास लोग फैसले के लिए जाते हैं, अपने जो है मामलात को हल कराने के लिए जाते हैं लोग। यही तरीका रहा है मेरे भाइयों। ये आयत अब ये जो है मुकम्मल हुई तफसीर। हमने हालांकि आखिरी जो उसका टुकड़ा है उसकी तफसीर और भी की जा सकती थी, लेकिन हमने ये आयत तो मुकम्मल की और इसी पर वक्त आज का हो चुका है। अब इसके बाद की जो आयत है जिसमें असल तौहीद की दावत अब ज़बान से शुरू हो रही है, अमल से तो वो दावत दे चुके हैं पहले, और उसी दावत का नतीजा है कि अब लोग उनसे सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब ज़बानी दावत पेश करेंगे, तो उसके लिए आप 2 हफ्ते का इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगले हफ्ते जो है दर्स नहीं होगा। मैं चूँकि बेटी की शादी उसमें बिज़ी रहूँगा, तो नहीं हो पाएगा दर्स इंशाअल्लाह। जो है उसके बाद फिर आपसे उसके बाद वाले इतवार को मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।